Dhawan. Hello everyone, I am Raju Ranjan. Welcome to another session of eTechnog 2021. In this session, our speaker is Sunil Dhawan and he is from Faridabad. He is an IT professional, more than 16 year experience in market. So let's welcome Sunil Dhawan. Hi everyone. Sunilji, before coming on today's topic, please tell me your journey in market. Okay, my journey started in official journey started with 2003 when I got my first paycheck and I invested my salary. And since then until October, November 2016, I've been investing based on the financials of the company or the fundamental growth or so-called a news-based approach. So what we got in Dalal Street or what we got in newspaper business line, so we used to buy that and hold it. And it was actually in August or September 2016, I decided that I need to make a shift to the technicals because maybe I can develop some skills in technicals rather than me coming from a computer background. I don't have a degree in CA or something like that, which give me assurance to understand the financials of the systems. So luckily, I saw your tweet in October, November 2016. It was about point and figure chart. Before that, I have gone through only candlesticks, and I have gone through different indicators. So my thought process was like, uh, you know, it is basically the indicator which brings the movement into the price. And if indicator is giving a buy, I will buy. If indicator is not giving a buy, I will not buy. So even though I'm looking at cup and handle or head and shoulder or flag pennants, but still the thought process was like this. So before joining uh, point and figure studies through Define Edge, it was hardly any formal education I have, formal training on stocks I have gone through. So once I get connected with Define Edge, I think I did my first training with Define Edge in April 2017 when Prashant sir and AP sir came to Faridabad and delivered their session. It was amazing session, and from there on, I was using Define Edge end of the day software, TradePoint end of the day, and you know I tried to buy, made some mistake, preempted the soft trend and setup and everything, every mistake which everyone do. So, but yeah, the good part was like when I started my study with the Define Edge on point and figure, then I was more focused on price. I didn't know what is price and action. Everyone talks about what is price, do price action, but I was not aware what is price action. So I was more focused on kind of patterns which are getting formed in point and figure, ABC pattern or the tweezers. Tweezers were my favorite at that point of time, and it was all going smooth until March 2020, and it was only in March. I have a setback with market the way it was falling, and from there on, I started using the real-time TradePoint software. So the difference why I'm highlighting about real-time and end of the day is before when I was using end of the day software, I bought something in say January 2017 based on 1% chart, and the software the pattern was getting converted into target. It was the vertical counts were getting met at that point of time. It was taking lots of time, say maybe 1 month to 3 months based on the chart or based on the market sentiments. So my study was gone in the thought process. It was all in the mind. I was not reading trading journals. So I bought on something. By the time my target is achieved, I didn't know why I shortlisted it. It was happening when I was using end of the day. So when I started using the real time, the learning curve of say 1 month to 3 months was getting shift to say 1 week, 2 weeks. So now
when I'm using real time, when I'm using future trades, my learning curve has become short. Maybe 1 day, 1 week, at max 2 week, at max. So that's why my confidence on my setup was increasing more rapidly the way it was happening earlier. तो वहां पे जाके मैंने पैटर्न पे सोचना ज्यादा शुरू किया, बिकॉज नाउ आई नो कि मेरा प्रोसेस क्या है, मेरे को किसको स्टिक करना है, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी. So then onwards, like I designed, I need to limit my universe. So I made a universe of 50 stocks, and the more I trade in my universe, it gives me a more confidence. I remember what is happening in TCS and Infosys, rather than understanding what is happening with Coforge or Mindtree or Emphasis. And more importantly, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, we are not here to trade every pattern. We are not here to trade every instrument and every counter. So वो rat race से बाहर आके now sticking to the discipline process, and this is what Prashant sir told me. I was reaching out to you, Vittal ji and Prashant sir, and everyone was saying the same thing. Discipline is more important. So I stick to my discipline. I stick to my process, and I came up with this thing. ग्रेट. सो सुनील जी, आपका जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज सबका जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होता है कि कोई दोस्तों ने बोल दिया या किसी मैगजीन से देखा कि ये स्टॉक बाई कर लो तो कर लिया. दोस्तों ने बताया कि आके बाई कर लो, लेकिन कब एग्जिट करना ये नहीं मालूम रहता है. सो आपका भी वही, और आज आप प्रोसेस ओरिएंटेड बिल्कुल आप ट्रेडर हो गए हो और प्रोसेस पे बात करते हो. तो ये सुन के काफी अच्छे लगता है जब भी आपसे मेरा डिस्कशन होता है. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक आपका है तो आप प्रेजेंट कीजिए, और बीच बीच में मुझे जब भी जरूरत होगी कि किसी डाउट को पूछने का, तो बीच बीच में मैं आपको इंटरप्ट करते रहूंगा. ठीक है. ओके, सो माय टॉपिक इज DT विद डबल ए. थोड़ा सा फैसिनेटिंग नाम देने के लिए दिया है, so that people get a curiosity what it is. Okay, so this is the Nifty chart. One thing, what happened with my journey is I was doing some unorthodox study. No, until 2017 or 19, there was no formal approach to learn. No, whatever I learned from Define Edge, from Prashant sir, from Raju sir, from you and from Vittal ji, AP sir, still I was missing one important part, which I think we should pay attention. I will try to bring that up, and from there onwards I will connect. So this is Nifty chart, daily chart, and somewhere over here in January, say I think 20th of January, when Nifty made a high of 12,450, then it started falling. I think by the time of 24th of March, we have a low formation over here of 7,500. Then we got a new high, which was I think 8,000, and then we have a higher low formation which was of 8,000, then higher high formation 9,000, 9,800, 9,500, then again higher low formation of 8,800. So importantly, what I'm trying to convey is, when we have a higher low formation over here, this is where investors, traders were confident. Now this is the time we should get into the market, and the higher low formation over here is our stop loss, and we can make an entry over here. So the point is, like, I was not paying attention to the Dow theory until 2020. Okay, it is very important aspect, and it is very simple approach, and this strategy is also very simple. Not to go for higher indicators or something. It's a very simple approach I'm trying to put.
So I'm considering the Dow theory, and let's see how it looks on point and figure chart. So this is how it looks on point and figure chart. Nifty 50 daily chart on 0.1% on 3 reversal box. Okay. If you pay attention, whenever we are having lows or higher lows formation, we are getting either the anchor column or the low pole. Or when we have a low pole with anchor column, that's also very good. So this is the aspect of what I picked up. You know, we should pay attention to the anchor columns, wherever the anchor columns are. So I made the vertical counts using these anchor columns, and these are the 45-degree trend lines and the support lines. So anybody can use these trend lines to get a confidence whether we are having the confirmation of Dow theory. So what attention I paid over here is whenever we are having the confluences of the vertical counts, we are getting more confident that the price can meet these confluences of vertical counts. So this is what I paid attention, and I decided once I have a second anchor column, that will give me a more confidence to enter with a follow through towards the vertical count, the confluence of the vertical count. Now, important thing is like, what is the exit point? Exit point, the one approach is wherever we are having a confluence meeting, better to exit over there or come up with some exit strategies. So the first approach is more safer and it caters your greed as well. If we are trading and we are greedy, we will not be able to earn. Many a times it happens, we go for a greed and we miss the trade. Earlier, 2-3 weeks back, I was trading something and my price target was 1300. And the instrument was option and it was meeting my target. And I decided, let me come out of it. And it went to high of 1450. And then from there, it brought the fall. So, it is not important you find the top of your pattern, your setup. The important is where you are meeting your greed or you are getting content. So this is what I paid attention. It gives me a good safety if I go for confluences of vertical count. So like I have these confluences. We have these confluences over here, and we have these confluences over here. One thing is important. If you look at 9551 and 9841, the delta between these confluences is high. So it is recommended to avoid this high delta and better to go for these kind of delta, 11723 and 11829. So इतना डेल्टा हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. अभी भी ये सिस्टम देयर वाज सम फ्लॉस. सो मुझे दो चीजों पे मैंने और यहाँ पे फोकस किया. One thing is 10 SMA and second thing is this area. So if you notice this area, there is a sharp fall over here. ये क्यों हुआ, क्यों हमारे कॉन्फ्लुएंस के पास जाके वो सस्टेन नहीं हुआ और इतना शार्पली गिरा. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी फॉल था बट वो पहले ही आ गया था, तो हमारे पास फिर भी एक सेफ्टी थी. यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक कॉन्फ्लुएंस को मीट करा बट वो शार्प फॉल नहीं था इतना. तो यहाँ पे एक्सोजोन बहुत बड़ी हेल्पफुल रही कि जब तक हमारे पास एक्सोजोन फेवरेबल नहीं है in the direction of the trade, I will not consider this trade as valid. Okay. So if I say over here, we have second anchor column, यहाँ पे डबल टॉप बाय एंट्री हो गया बट एक्सोजोन फेवरेबल नहीं है, तो इस एंट्री को नहीं करना. जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, नाउ इम्पोर्टेंटली जब ये एंकर कॉलम बन गया, अभी हमारे पास ये कॉन्फ्लुएंस रेडी हो रहा है, ये ऊपर का कॉन्फ्लुएंस रेडी है. तो हम इधर एबीसी ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हैं और हम इस स्विंग हाई को भी
एंट्री कर सकते हैं। Okay. स्विंग हाई गिव्स द मोर लेवल ऑफ सेफ्टी सेफ ट्रेडर्स के लिए। अगर हम एबीसी रहते हैं तो एबीसी में देर आर चांसेस इफ द एबीसी पैटर्न इज लॉन्गर, देर आर क्वाइट अ गुड चांसेस कि वो एबीसी ब्रेकआउट देने के बाद फॉल करेगा। मे बी एसबीआई ने ऐसा पैटर्न क्रिएट किया है, आई थिंक समवेयर एंड ऑफ द मंथ सितंबर, जहां पे वो एबीसी के ब्रेकआउट के बाद एक शार्प फॉल दिया। तो स्विंग हाई यहाँ पे एक सेफ्टी आ जाती है हमारी, तो यहाँ पे एक एंट्री होती है हमारी। और इसके बाद ये कोर कॉन्फ्लुएंस बन जाता है जब ये रिट्रेसमेंट आता है। अभी यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें एक और दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन 10 SMA का रोल कहाँ पर है, सेकंड हमारा एग्जिट रूट क्या है। तो मैं एग्जिट के बारे में बताता हूँ। एग्जिट के लिए मेरी अप्रोच है, इधर मेरे को हाई पोल के साथ फॉलो थ्रू मिल जाए, अगर हाई पोल है तो डबल बॉटम सेल मिल जाए, या फिर मुझे कॉलम ऑफ ओ, एंकर कॉलम ऑफ ओ के बाद एक फॉलो थ्रू सेल मिल जाए डीबीएस, और लगातार दो डबल बॉटम सेल मिल जाए, तो वो मेरे लिए एक अप्रोच हो गया एग्जिट का, सेट ऑफ अप्रोच। जो अगला एस्पेक्ट है वो है 10 SMA। नाउ 10 SMA एक्चुअली इसका प्रेसिडेंस सबसे हायर है, मींस पहले मुझे एंकर कॉलम देखना है, एंकर कॉलम देखने के बाद मुझे देखना है कि मेरा 10 SMA कहाँ है। क्योंकि अगर जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली इस एंकर कॉलम में, जब ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ, अगर हम ये मानते हैं यहाँ पे एबीसी फॉर्मेशन अच्छा रहता, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या था, ये डिस्पैरिटी बहुत हाई है। अगर डिस्पैरिटी हाई हो जाता है, दैट डजंट गिव मी अ कॉन्फिडेंस, हमें उसको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये अभी जब हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए अंटिल दिस आई डोंट न्यू कि क्या हो रहा है निफ्टी में। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लो पोल फॉर्मेशन हो गया। अब इस लो पोल के साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे डिस्पैरिटी सबसे मिनिमल है, सबसे मिनिमल। एबीसी फॉर्मेशन के साथ डिस्पैरिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। एंड यहाँ पे जो अगर हम इस फॉलो थ्रू की एंट्री करते हैं एबीसी की ब्रेकआउट का, तो मेरे पास सबसे अच्छी चीज है कि ये कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे वर्टिकल काउंट है, इस कॉन्फ्लुएंस के साथ ये जब रिट्रेसमेंट होता है तो ये कॉन्फ्लुएंस आगे खुल गए मेरे पास। तो दिस इज द बेस्ट एंट्री जो कि मतलब सुटेबल कंडीशन में मिलती है, आई वुड से। तो उसके बाद अब अगर हम ऊपर जाते हैं जितना, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे डिस्पैरिटी फिर बढ़ गई, मगर यहाँ पे हमारे पास सेफ्टी क्या रही, अगर हमारे पास हाई पोल आया तो डबल बॉटम सेल नहीं आया। डबल बॉटम सेल जब तक नहीं आया तब तक हम सेफ है। यहाँ पे हाई पोल के साथ डबल बॉटम सेल भी आ गया तो यहाँ एग्जिट है। ये एग्जिट के साथ ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारी कॉन्फ्लुएंसेस बहुत अच्छे हैं। अब जरूरी नहीं है दोबारा एक एंकर कॉलम को वेट करें हम, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे हमारे पास हाई पोल आया, हाई पोल के बाद डबल बॉटम सेल आ गया, यहीं पे एग्जिट कर दो। इस एसएलओ करने से हमारे पास सेफ्टी क्या हुआ, हमें 10 SMA का वेट नहीं करना पड़ा। नाउ अगर हम 0.15 पे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, या अगर हम कैश के अंदर 0.25 पे ट्रेड कर रहे हैं, 10 SMA could be a very good exit strategy until unless मेरी 10 SMA is safe, I can stay in the trade because if it is affordable. अगर मैं कैश का ट्रेड ले रहा हूँ 0.25 पे हूँ, मेरी 10 SMA ब्रेक भी कर गई, आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट until unless मेरा हायर टाइम फ्रेम क्या पिक्चर प्ले कर रहा है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कि जब भी हम इस स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि मल्टी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। जब मैं मल्टी टाइम फ्रेम कह रहा हूं तो मेरे लिए कैश के अंदर चारों टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, 0.15, 0.25, 1% और 3%। मैं चारों टाइम फ्रेम देखूंगा जब भी मैं कैश का ट्रेड लूंगा। मगर जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो मैं सिर्फ 0.15 और 0.25 देखूंगा। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो 1%, 2%, 3%। नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट थिंग्स व्हाट हैव बीन टॉट, कि ऑप्शन में कई बार हमें 1% और 3% पे कुछ नहीं मिलता। उस टाइम पे अगर हम 2% देखेंगे ना, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो ये स्ट्रैटेजी 2% पे भी हम देखेंगे, अच्छा रहेगा। अब
अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो हमें मल्टी टाइम फ्रेम देखने में वो बताएगा कि सिमिलर स्ट्रेटजी लोअर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर मैं ये निफ्टी 0.1% पे देख रहा हूँ तो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं ये भी देखूं कि 0.05% पे डाउ थ्योरी क्या कर रही है, वहां भी चलेगी अपने आप में। मैं एग्जांपल दूंगा इसका कि हर जगह हर टाइम फ्रेम पे एक डाउ थ्योरी चल रही होती है, हमारे को देखना है कि वो कहाँ चल रही है, कहाँ हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, यही है। बताइए आपके ओके, क्वेश्चन। सो थोड़ा कुछ एक जो है ना, आपने एंकर कॉलम बोला, तो फॉर व्यूअर्स एंकर कॉलम क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप कर देते। सो एंकर कॉलम मेरे लिए वही डिफॉल्ट सेटिंग है कि once we have minimum 15 boxes in the same direction in the same column, if you are talking about column of x, तो हमारे पास मिनिमम 15 बॉक्सेस x के बन जाते हैं तो वो हमारा एंकर कॉलम हो गया। ओके, सो मोर अगर हम देन o की बात, 15 एक्स या ओ को आपने आप एंकर कॉलम। हाँ, तो हमारे लिए सेटअप रेडी हो गया। और वहां पे अगर लो पोल हो जाता है, मान लीजिए लो पोल हो गया और एंकर कॉलम नहीं हुआ, तब भी हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट पीछे हमारे क्या हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लुकिंग लेफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट। अनदर थिंग, डिस्पैरिटी आपने डिस्कस किया कि इस एरिया में कहीं इधर जो आपने शो किया था निफ्टी में, तो डिस्पैरिटी आपका हाई था, तो क्या डिस्पैरिटी क्या है? तो डिस्पैरिटी, ये डिस्पैरिटी है। देखिए, अब अगर हम इस एंकर कॉलम को देखते हैं, अब इस एंकर कॉलम के एस्पेक्ट में जब ये एंकर कॉलम पूरा होके कॉलम ऑफ ओ बना, तो यहां से 10 SMA का जो डिस्टेंस है, ये डिस्पैरिटी कहलाता है। इसके लिए एक इंडिकेटर भी है ट्रेड पॉइंट में, डिस्पैरिटी इंडेक्स का, जो शायद 0 से 1 की वैल्यू चलता है। बट इन माय सेटअप दिस इज समथिंग विच इज नॉट, विच इज सब्जेक्टिव। अभी ये चीज जो है मैंने अपने लर्निंग से ले लिया है कि मैंने आंखों में एडजस्ट हो चुका है कि मैं कितना डिस्पैरिटी ले रहा हूँ। बट फॉर अदर्स, फॉर व्यूअर्स, इट इज रिकमेंडेड टू यूज disparity index indicator until unless they master the this setup. So ओके, यही है सो डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मूविंग एवरेज इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। disparity। और एक important aspect है, because of disparity I refrain myself to trade T20 और सुपर पैटर्न, क्योंकि उस केस में डिस्पैरिटी मैक्सिमम होता है, तो फॉलो थ्रू इतना अच्छा नहीं आता जितना रिट्रेसमेंट आके फॉलो थ्रू आता है। तो मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता T20s। ओके, फाइन, ठीक है। अनदर उसमें आपने ये डिस्कस किया कि अगर 0.25% पे अगर मान लो आप कोई डिलीवरी ट्रेड आप ले लिए हो पोजिशनल, जिसमें आप 0.25% में प्राइस अगर एमए के नीचे भी आ गया और 1% और 3% पे अगर कुछ इंडिकेशन नहीं है, तो यू विल वेट। यस, सो ये चीज मैंने एपीएल अपोलो से सीखी थी लास्ट ईयर, और अभी अमर राजा बैटरी भी इस तरह का कर रहा है फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है कि अगर हम 3% पे देखते हैं, तो 3% पे वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फॉलो थ्रू फॉर अ एंकर कॉलम। मगर अगर हम 0.25% पे देखते हैं, जैसे आईटीसी का भी चार्ट है, आईटीसी के चार्ट ने भी 0.25% पे कुछ नहीं किया था, वो अभी भी मोर और लेस की फॉलिंग ही था। बट अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें एक रिवर्सल की वेट हो रही है। तो वो जब रिवर्सल होता है, जैसे कि अगर मुझे याद है अच्छी तरह, अमर राजा बैटरी में 737 पे रिवर्सल हो रहा था। सो एंटिसिपेशन के ऊपर ट्रेड लेना है बेसिकली, वो चीज कि वो मेरा कहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे हाई पोल फॉर्मेशन ब्रेक होता है, तो वो मेरे लिए एक वार्निंग साइन हो जाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। सो अनटिल अनलेस मेरा हाई पोल ब्रेक नहीं हो रहा हायर टाइम फ्रेम पे, मैं 0.25 पे सेफ हूँ। ओके, सो 0.25 में अगर मान लो क्या कि अगर दो डबल बॉटम सेल भी आता है या हाई पोल के बाद कोई डबल बॉटम सेल भी आता है, फिर भी आप बने रहो। मैं फिर भी बना रहूंगा। मैं पॉइंट कैश के अंदर 0.25 पे कुछ भी हो रहा है, मैं इसका बताऊंगा आगे, एग्जाम्पल भी है। और उसका रीजन क्या है कि आप देखिए, जब भी डाउ थ्योरी बनेगी, तो डाउ थ्योरी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे को बियर ट्रैप्स चाहिए। जब तक बियर ट्रैप्स नहीं होंगे,
तब तक डाउट थ्योरी फुलफिल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हायर, अगर आप ये देखिए, जैसे ये हाई पोल है, अब ये हाई पोल के बाद एंकर कॉलम फॉर्मेशन हो गया, मगर ये फॉलो थ्रू नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बियर ट्रैप्स हैं। यहाँ पे बियर ट्रैप्स हुए और चेंज हुआ। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे तो नहीं है, ये और कहीं नहीं है ऐसा एग्जाम्पल, बट मैं अपने एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि जहाँ पे बियर ट्रैप्स होंगे तभी हमारे पास एक हायर लो आएगा जो कि हमारे लिए पैटर्न फॉर्मेशन में बेनिफिट देगा। और ये चीजें विद एक्सपीरियंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि डे फ्रॉम द डे वन आप इसको बियर ट्रैप की प्रीएम्प्ट करके उसको ट्रेड करें। आप डॉ थ्योरी के रूल्स के ऊपर ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। तो अगर 0.25 टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो बेटर है 0.15 पे देखिए क्या हो रहा है, या और 1% पे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Okay, thank you. Okay, so this is the name Dow theory using double A. Double A means a double anchor column. So this is what my focus is. So DT with double A. So what is the first thing I look into the chart when I have to find a trade? Okay, I look for an anchor column, low pole or high pole. Where is my 10 SMA from the current market price? What is the exo zone? And where is the confluence of vertical count? Now, one thing I would like to tell upfront, no, this strategy is not to get so many trades. This strategy is to reduce the trades, to increase the safety and sit relax. It's a simple strategy. So it is not necessary, out of 160 stocks, if you make a universe of 50, maybe you can get this strategy for 5-10 stocks at max. But the objective is not to find maximum number of trades. The objective is to get the maximum safety. So let's discuss the entry rule. हमें एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू देखना है, सेकेंड एंकर कॉलम का। डबल एंकर कॉलम बोल रहे हैं तो हमें सेकेंड एंकर कॉलम पे फोकस करना है, बट ऑलवेज लुक फॉर लेफ्ट कि हमारे पास एंकर कॉलम लेफ्ट में कहाँ है। डिस्पैरिटी क्या है हमारा करंट मार्केट प्राइस से और 10 SMA से। एक्सोजोन फेवरेबल है हमारे लिए इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्टिकल काउंट मिल रहा है हमें, और उसके अंदर डेल्टा क्या है। अब एग्जिट रूल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास हाई पोल के साथ फॉलो थ्रू डबल बॉटम सेल आ रहा है अगर हम लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे शॉर्ट ट्रेड के लिए लो पोल विद डबल टॉप बाय। 10 SMA हमारा, अगर हम फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हमारा 10 SMA ब्रीच कर रहा है 0.15 को कि नहीं। अगर वो ब्रीच कर गया तो उसके बाद वो अफोर्डेबल नहीं बचेगा। हम 0.25 पे वेट नहीं करेंगे 10 SMA को ब्रेक करने की इन केस ऑफ फ्यूचर्स। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम 0.15 पे ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं। तो ये 0.15 ऑन डेली बेसिस डेरिवेटिव फॉर डेरिवेटिव्स। नहीं, अगर हम derivative कैश नहीं है, जो टाइम जो फ्रीक्वेंसी जो है डेली क्लोजिंग या 1 मिनट। 1 minute, this is for 1 minute. Okay, so this is for 1 minute. 1 minute. Second point is only for 1 minute. Good question. Okay, fine. Sorry, my bad. I missed out this. Then anchor column of X or O with a follow through. अगर हाई पोल नहीं हुआ तो ठीक है। And follow through double top buy or double bottom sell in 0.25 in case वो अफोर्डेबल है। Okay. Okay. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है भारती 3%। जो एग्जिट स्ट्रेटजी जो आपने लास्ट वाला जो ये बोला, फॉलो थ्रू डीटीबी और डीबीएस इन 0.25, तो दिस इज मतलब अगर हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट। अगर हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अगर आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। लाइक आई सेड, फॉर मी इट इज अफोर्डेबल। ठीक है। भारती की बात करते हैं। नाउ फ्रॉम मे टिल दिसंबर आई नेवर लुक्ड एट द भारती चार्ट ऑन डेली बेसिस। मैंने हमेशा 1% ही देखा, 1 मिनट ही देखा था। तो व्हेन आई सॉ द चार्ट
ऑन डेली क्लोजिंग वो नवंबर दिसंबर की बात थी, जो कि यहाँ पर है। अभी हमारे पास हाई पोल हो गया था और ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ आ रहा है। नाउ ओवर हियर आई सी दिस इज लो, हायर लो, and this is again higher high and higher low. Now this is not breaching my 45-degree support line. And importantly, यहाँ से हमारे पास एक vertical count open है. So this vertical count gave me first hope कि बस Okay. कुछ तो होगा, यहाँ पे होगा. और then this ABC formation is already in there. जब ये column of X बनना शुरू हुआ, I made my 50% of the tranche entry over here. I'm preempting over here because now the exozone is favorable. We have a confluence formation. हमारा ABC फॉलो थ्रू एक बार आ चुका है हमारे पास. ABC का फॉलो थ्रू डबल टॉप बाकी है. अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 1% में क्या हो रहा है. ये देखिए 1%. अब 1% में देखिए यहाँ पे कहीं पे फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा है. Until unless ये जब फॉलो थ्रू नहीं आ रहा, एंकर कॉलम का ABC बियरिश ABC नहीं बन रहा, मैं सेफ हूँ यहाँ पे. और ये हमारा सेफ है यहाँ पे कॉलम. तो यहाँ पे एक्सोजोन जब हमारी फेवरेबल हुई, मतलब हम 3% पे सेफ हैं. और उसके बाद ये डबल टॉप पे मैंने अपना एंट्री कंप्लीट कर लिया. नाउ आई एम सिटिंग टाइट. भारती ने इसके बाद हाई का किया, 730 का हाई किया, 745 का हाई आया, 742 44 का हाई आया. और उसके बाद रिट्रेसमेंट शुरू हो गया जो कि 690 तक लो में गया आई थिंक. सो विच इज सेफ बिकॉज अभी हमारा कॉन्फ्लुएंस अभी भी ओपन है. अभी हमारा हम यहाँ देखिए 773 से 845 कॉन्फ्लुएंस हमारा ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा डेल्टा 70 से ज्यादा नहीं है. फॉर स्टॉक ऑफ 800 600 अगर हमारे पास 70 पॉइंट का डेल्टा है विच इज गुड फॉर अस. सो वी आर गुड फॉर दिस कॉन्फ्लुएंस. तो यहाँ से आप देखिए अच्छी मूवमेंट आई है भारतीय में. तो आप जो प्रिएम्प्ट किए ये कॉलम रिवर्सल पे हम 3% या कॉलम को 3% पे कॉलम. हाँ जी, मैंने जब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस बहुत अफोर्डेबल हो गया. ओके गॉट इट. यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉलम ऑफ एक्स पे हुआ तो आप जब कॉलम ऑफ एक्स फॉर्मेशन शुरू हो गया तो मैं यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया ना. हाई पोल के बाद डबल बॉटम सेल आ गया. हाँ, तो अगर ये निकलेगा भी तो भी मेरे लिए सब सेफ है. और वो हमारे पास 1% में यहाँ पे फॉलो थ्रू बन जाएगा. फिर एक्सोजोन फेवरेबल नहीं होगा तो हमारा सेटअप यहाँ पे भी नहीं फेवरेबल होगा, तो हम यहाँ भी सेफ है. हम यहाँ देखिए हायर लो, हायर हाई फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, तो हम यहाँ भी सेफ हैं. तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा इंपॉर्टेंट है, करते रहना है. एंड प्रशांत सर ने एक बात बोली थी आज से 3 साल पहले कि जब आप 3% पे करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा वो 1% पे क्या कर रहा है. तो वो चीज अब मैं फील कर पा रहा हूँ आफ्टर प्रैक्टिसिंग आफ्टर 3 years 4 years. अब वो पता चल जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा हो तो हम सेफ हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है. सो दिस थिंग इनफैक्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली, फ्यूचर के ट्रेड में एक्सोजोन को कैलकुलेशन भी मैनुअली करने लग जाता हूँ मैं कई बार कि हाँ जी एक्सोजोन कन्वर्जन कहाँ तक होगा. तो अगर हमारा सेटअप अनफेवरेबल हो गया, एक्सोजोन तो अनफेवरेबल नहीं हुआ ना, तो एक्सोजोन अनफेवरेबल कब होगा तो वो अफोर्ड कर सकता हूँ मैं. अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, निकलो. अफोर्ड कर सकते हैं तो एक्सोजोन की वेट करो. इसका एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा. एक्सोजोन बहुत बेनिफिट करती है, बहुत अच्छा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ दिस इज अ डिसिप्लिन. वी नीड टू स्टिक टू द डिसिप्लिन. देखिए एक्सोजोन फेवरेबल है तो सिट काम, कोई वरी नहीं करना. कोटक बैंक अगेन, कोटक बैंक का चार्ट मैंने अंटिल अगस्त तक नहीं देखा था. कैश का चार्ट मुझे नहीं पता था क्या कर रहा है, मुझे पता था फ्यूचर की मूवमेंट किस तरह हो रही है. सो समवेयर हियर मैंने कैश का चार्ट जब पहली बार देखा आफ्टर 1 year, सो देन आई रियलाइज कि मेरे पास वर्टिकल अकाउंट ओपन पड़े हुए हैं बहुत सारे. दिस 1999 21 these vertical counts were open. So this gave me a confidence कि डॉ थ्योरी बहुत अच्छी फेवरेबल बन रही है. और यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक्सोजोन की है. तो जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था 1830 1815 1830 का, तो हमारा एक्सोजोन फेवरेबल था. और यहाँ पे एबीसी का कॉन्फ्लुएंस बन रहा है हमारे पास अच्छा. और यहाँ पे ये लो पोल भी हो गया था, एक मिनी बॉटम. दिस डबल बॉटम सेल हैपेंड ओवर हियर.
तो जब उसका फॉलो थ्रू हुआ तो वो मेरे लिए फेवरेबल हो गया कि बॉस ये 1984 एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस हो गया जिसको पीछे से सपोर्ट मिल रही है. सो आई वेंट फॉर 1984. तो दिस गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि यार यहाँ पे चाहे फ्यूचर हो चाहे कैश हो, यहाँ पे बहुत अच्छा एंट्री है, ये मिस नहीं करना चाहिए. तो आफ्टर दिस Kotak Bank went up to high of 2060 2065 I think in cash, मुझे याद है. So this is very good, अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी एक्सोजोन हमारे पास फेवरेबल नहीं थे. तो अगर हम पहले भी हमने कभी वो किया होता शायद हमारे को एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी. This is Kolpal 1%. Again we have a good confluence over here, so entry made over here. तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत नॉइस है इसमें, जैसे कि हाई पोल हुआ, डबल बॉटम सेल नहीं हुआ, हाई पोल हुआ, डबल बॉटम सेल हो गया, 1% ब्रीच हो गया. अभी इस टाइम पे जहाँ पे आपका 1% में 10 SMA ब्रीच हुआ है, ये हमारा रूल है. अभी हमें देखना मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है. दिस इज 1%. अब हमें देखना है कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर अफोर्डेबल है, लोअर में अफोर्डेबल है कि नहीं. नाउ दिस इज वे बैक, आई थिंक काफी पुराना है. आई थिंक मैं कैप्चर सही नहीं कर पाया. ओके, लुक एट दिस वन. नाउ दिस इज 3% ऑफ कोलपाल. अगर if somebody is trading 3%, nowhere it has breach 10 SMA, और जो 10 SMA ये breach हुआ था, this is corona bottom. अगर ये 3% पे कोरोना बॉटम हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ना एक्सोजोन फेवरेबल है फॉर शॉर्ट्स फॉर एग्जिट, और ना ही हमारा यहाँ पे हाई पोल के बाद डबल बॉटम सेल आया, एक्सोजोन नहीं चेंज हुआ. तो यहाँ कॉन्फिडेंस से बैठना है. अभी हम देखेंगे 1% के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था. तो आई थिंक कोरोना के अंदर ये शायद ये वाला टाइम कोरोना के बाद, इसके बाद कोरोना का हुआ था यहाँ पे. तो अगर एक्सोजोन हमारी ग्रीन है तो वी आर सेफ कि हमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं. तो कॉन्फ्लुएंस भी अगर हमारे फेवरेबल हैं और higher time frame, multi time frames are in sync, so we are good. But सुनील जी, एक जो है इसमें आप कोलपाल का जो बात कर रहे हैं, 1% पे आपको इंडिकेशन आया है एग्जिट का, जो एज पर रूल. हाँ. बट 3% पे जो एक्सोजोन आपको फेवरेबल नहीं था, because it was in buy, correct? See, now important thing over here is, what time frame you are trading. अगर आप 1% को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 3% उस केस में शायद वो सही अप्रोच नहीं रहेगा. जब जो पहला सेटअप है, पहला आपका ट्रेड है, वो आप किसको देख के चल रहे हैं. अब कई इंस्ट्रूमेंट, जैसे भारती को मैंने ट्रेड ही उसको 3% पे किया. मैंने ट्रेड ही 3% पे किया उसको, कि मेरे को 3% फेवरेबल है तो मुझे वहां पे ट्रेड देखना है उसको. मुझे नहीं देखना कि उसके 1% में क्या हो रहा है. 1% मुझे तब देखना है जब वो मुझे बताएगा कि मैं अफोर्डेबल, मेरा स्टॉप लॉस है कि नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली 3% की जो मूवमेंट है वो आने में बहुत टाइम लगेगा. तो मुझे लो टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. और अगर कोई, जैसे कोलपाल की अगर हम बात करते हैं, तो कोलपाल अगर कोई 1% पे ट्रेड कर रहा है तो उसके इसके अंदर 0.25 पे देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे पास मैं ये जो टाइम था चार्ट और ये जो टाइम है, सेम टाइम फ्रेम का नहीं ला पाया. तो इसलिए मैं उसको वहां पे कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ. बट अगर हम यहाँ पे भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंसेस थी, तो हमारे पास बाद में देखिए ये फॉलो थ्रू के लिए एक्सोजोन फेवरेबल नहीं बचा था, तो इसलिए वो अलग हो गया. ठीक है, दिस इज समथिंग जुलाई 21. सो वो पुरानी हिस्ट्री में हो चुका है शायद, तो मैं इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ. बट TCS 0.15%. Now this is very interesting thing. यहाँ पे रूल्स और प्रोसेस काम में आए. Now हुआ क्या, जब IT पैक चलना शुरू हुआ, at that point of time Infosys was the first one. Infosys में मूवमेंट आया था 1605 के पास, और Infosys was the first one to move in IT recently in the month of August September. और
कोफोर्ज, एम्फोसिस, माइंडट्री सब में मूवमेंट हो गया था, बट टीसीएस नहीं चला था तब तक. सो इफ यू लुक एट दिस बैक ट्रेंड, यहाँ पे अगर कोई 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहेगा, एक एंकर कॉलम के बाद 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे एंट्री कर लेगा. इट इज वेरी गुड ट्रेड. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, मे बी आप 3300 में एग्जिट कर जाएंगे, मे बी, डिपेंडिंग कि आपका क्या टारगेट. मगर अगर आप वेट करते हैं अपना डाउ थ्योरी के लिए, तो ये हमारा पहला लो था, ये हाई फॉर्मेशन हुआ, हायर लो फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ. तो यहाँ पे एंट्री जो है 3294 की एंट्री, इसने हमें 3294 की एंट्री ने कॉन्फिडेंस दिया कि बॉस आप 3400 तक तो सेफ हैं, एक्सोजोन फेवरेबल है. तो ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं इस ट्रेड को देख रहा था कि यार टीसीएस भाग चुका है, मुझे एंट्री नहीं मिल रही. सो यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, स्टिकिंग टू द डिसिप्लिन, नो मैटर प्राइस, वट एवर प्राइस इज डूइंग. क्योंकि अगर हम प्राइस के पीछे फियर ऑफ मिसिंग आउट करेंगे ना, तो वो हमारे रूल्स भी ब्रेक होंगे और हमारा सेटअप भी ब्रेक होगा, और फिर टारगेट और एग्जिट का तो आप भूल ही जाइए. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप इज कि प्राइस इसके बाद 3900 4000 तक गया था. दिस इज द काइंड ऑफ सेफ्टी वी गॉट फ्रॉम दिस मच थिंग ओनली. So this is what I'm trying to emphasize. Stick to the rule. ये टीसीएस में यहाँ जब आप अगर एंट्री किए इस फॉलो थ्रू पे, यहाँ पे हाँ जी, तो वहां पे डिस्पैरिटी थोड़ा हाई नहीं था? हाँ, डिस्पैरिटी हाई था. गुड क्वेश्चन. डिस्पैरिटी हाई था, बट I said ना, like disparity is something based on eyes. So मुझे ये उस वक्त कंफर्टेबल लगा, बिकॉज ये लैगर था उस वक्त, और सारा आईटी पैक चल चुका था, और उस वक्त भी हमारी ब्रेथ 100% नहीं हुई थी. तो अगर हम देखें एफएमसीजी को, एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर चला सबसे पहले, उसके बाद ब्रिटानिया भी चला, उसके बाद कोलपाल भी चला, सब चले, बट आईटीसी नहीं चला था. और जब आईटीसी चला था तो दैट वाज अ लास्ट स्टॉक इन एफएमसीजी. और जब ये कोटेक की मूवमेंट हुई थी, this one now, this Kotak was also the last one in the banking, private banking. हमारे को वहां ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि सारा सेक्टर चल चुका है, एंड दे आर द लास्ट वन. सो कोटेक, आईटीसी एंड टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स ने अपने सेक्टर में लैगर हो रहे थे, तो मतलब वो चलेंगे, वो कॉन्फिडेंस है कि अगर सेक्टर भाग लिए तो ये भी चलेंगे. तो तीनों में बहुत सेफ्टी है. कॉन्फिडेंस यहाँ से है कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेकआउट है. हाँ, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन. ओके, फाइन. तो उसका इसमें मैंने डिस्पैरिटी को, मैंने बोला ना, डिस्पैरिटी इज समथिंग सब्जेक्टिव इन दिस सेटअप. हिंडाल्को, अगेन हिंडाल्को भी वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू सी, यहाँ पे हमारे पास एक लो बन गया था, इस फॉल के बाद एक लो बन गया था, और यहाँ पे हम फॉलो थ्रू की वेट करते कि अगला हायर लो बनता. उससे पहले ही हमारे पास एक्सोजोन फेवरेबल नहीं है, तो हमें इग्नोर करना है कि कुछ भी करता रहे, हमें कुछ नहीं करना. यहाँ पे लंबा लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ बना है, तो हमें पता है एक्सोजोन फेवरेबल नहीं है जब तक हम इससे दूर नहीं चले जाएंगे. यहाँ पे एक लो पोल हुआ, अगेन हमारे पास यहाँ पे बना, तो ये हमारा डाउ थ्योरी फेवरेबल हो गया. यहाँ पे एंट्री करो, एक्सोजोन फेवरेबल है, 434 हमारा फेवरेबल है. और यहाँ पे आप देखिए, अब ये पॉइंट जो है, मुझे याद है 433 का एग्जिट था. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई सेड कि अगर हम पहले कॉन्फ्रेंस में निकलते हैं, इट गिव्स अस अ सेफ्टी. दोबारा बाद में एंट्री मिलना, इट्स डिफरेंट थिंग, बट डोंट रन बिहाइंड द प्राइस. स्टिक टू योर रूल्स. हमें कंटेंट होना चाहिए. और आई रिमेम्बर आफ्टर दैट, आई थिंक समवेयर अराउंड 440 438 ये एंकर कॉलम के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला. अब मेरे पास यहाँ पे दोबारा कॉन्फ्रेंस मिल गया, तो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड एंट्री मिल गई. तो ये एग्जिट मेरे लिए कोई दर्द नहीं कर लेके आया. यहाँ पे तो जहां का पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां निकल जाइए. अगर आप 3% पे हैं, पहला कॉन्फ्रेंस हो गया, और सेकंड कॉन्फ्रेंस कितना दूर है वो आपको देखना है कि वहां पे निकलना है कि नहीं निकलना. मगर यहाँ पे निकला, हमें बेनिफिट देके गया. और यहाँ पे हाईपोल के बाद देखिए आप, ब्यूटीफुली इट इज रनिंग. यहाँ पे हमारे पास कहीं भी एग्जिट नहीं आया, अंटिल 470 तक कोई एग्जिट नहीं, और 470 पे ही एग्जिट.
एग्जैक्ट 470 पे हाई फॉल हुआ, ठीक है निकल जाओ, यहाँ 470 पे निकल जाओ यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे इस केस में आपने 470 की वेट करने के अच्छा, मैं कहूंगा जैसे अगर हम इन दो लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में जो लोअर लेवल है उसको प्रेफर करो रादर देन गोइंग फॉर द अपर फ्लोर ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। Okay. तो जहां भी ऐसे कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस में लोअर फ्लो को प्रेफर करो, तो ये अच्छा रिजल्ट देके देगा हमेशा। Okay. Great. Talking about short trades, we have this mini top formation। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हुआ, एबीसी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एग्जिट बनता है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ, एक्सोजोन फेवरेबल है, हमारे पास पहला कॉन्फ्लुएंस रेडी था, यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है, पहले कॉन्फ्लुएंस पे निकल जाओ, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप हुआ, डबल टॉप बाय के बाद डबल बॉटम सेल दोबारा हुआ। नाउ बाय दिस टाइम वी हैव अनदर कॉन्फ्लुएंस फॉर्मिंग विद अ बिगर डेल्टा, तो हम यहाँ पे 55 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट बाय द टाइम हम 55 जाएं उससे पहले हमारे पास हाई पोल फॉर्मेशन आ गया। अब हमारी यहाँ प्रॉब्लम शुरू होगी कि यहाँ पे जब भी अब स्विंग हाई ब्रेक करता है डबल टॉप बाय, बेटर एग्जिट। जैसे मैंने बोला कि मैं एबीसी की वेट नहीं करता, स्विंग हाई की या स्विंग लो की ब्रेक वेट करता हूँ, वो मुझे सेफ्टी ज्यादा देता है। तो वो चीज के लिए यहाँ पे अगेन 0.15% पे निकल गए हम, उसके बाद इधर ही हमारा निकलना एग्जिट है, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप बाय जहाँ मिल रहा है, और हमारे को साथ एक तो लो पोल हो गया, डबल टॉप बाय हो गया, और उसके बाद 0.15 ब्रीच हो रहा है हमारे पास, सो स्ट्रिक्टली एग्जिट ओवर हियर, ठीक है। 3 रूल्स हमारे साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा एंट्री कर सकते हैं, हमारा स्विंग लो जैसे ही ब्रेक होता है तो हम एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज बाय दिस टाइम हमारी कॉन्फ्लुएंस अगेन क्रिएट हो गई है विद लो डेल्टा। अर्लियर हमारा डेल्टा हाई था, वो मीट नहीं करा। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। जब डेल्टा हाई है तो डोंट गो फॉर हायर लेवल्स, वो कुछ कर देगा प्राइस। जब हमारा डेल्टा कम हो गया, वो हमारे फेवरेबल कंडीशन आएंगी और वो मीट करेगा टारगेट। यहाँ पे भी देखिए आप, डेल्टा सिर्फ 7 पॉइंट का हुआ और ये पूरा मीट करा। HDFC like this, don't trade this ABC, no need to trade this ABC, no, wait for डाउ थ्योरी। हायर हाई बन गया, लोअर हाई बन गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक्सोजोन फेवरेबल होगी। तो ये जो डबल बॉटम सेल है यहाँ पे एक्सोजोन फेवरेबल है, और हमारे पास कॉन्फ्लुएंस कितना देखो, कितना प्रिसाइज कॉन्फ्लुएंस है। तो दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट, इज जहां हमारा कॉन्फ्लुएंस जीरो डेल्टा के साथ होगा ना, बस समझो वो तो तर गए। ठीक है, और यहाँ हमारा टारगेट आप देखिए 434 का लो है, और उसके बाद प्राइस ने 0.15 मीट किया। तो उसके बाद प्राइस जो भी कर रहा है, अगर ये लो 1400 का लो आ रहा है, हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा यहाँ से शुरू हुआ है 1480 से हम 434 आ रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, वो ट्रेड मिल जाएंगे। तो लास्ट के वो 30 पॉइंट्स छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूपिन, very good chart. We have a Dow theory formation, exozone favorable, but follow through नहीं आया। ये follow through नहीं आया तो बस ऊपर चला गया। Now importantly, now these levels have no significance जब हमारे पास यहाँ पे low formation हुआ। Okay. तो इसके बाद ये एंकर कॉलम्स को, ये वर्टिकल काउंट्स की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि उनका हाई जो था वो ब्रीच हो चुका है। तो अब इनके साथ कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है इनके साथ। तो अब यहाँ पे एंट्री हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल एंकर कॉलम तभी बने। अगेन मिनी टॉप फॉर्मेशन हुआ हमारे पास, और कॉन्फ्लुएंस के अंदर डेल्टा था हमारा हाई, देखिए। तो अभी हम अपर 1134 के लिए ट्रेड करेंगे। अब ये देखिए, ये लो है, ये हमारे फेवरेबल में, उसके बाद हम इसके लिए नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट होने के बाद भी प्राइस ने रीच किया, in that case somebody can wait for this low to break. Swing low is most important, swing lows and swing highs, those are more important for further entry. Okay, उसके बाद चार्ट में कुछ भी हो रहा है, because confluence is not good, it is not favorable anymore. Okay. Maruti, Maruti is very important chart, I have put over here.
and I think this is kind of a homework. We have a conference meeting over here. यहाँ पे कॉन्फ्लेंस मीट हो गया, मगर जो ये कॉन्फ्लेंस था, अब इसमें डेल्टा भी आई था। यहाँ पे देखिए 4384 और 6384 और 6432, ये कॉन्फ्लेंस हमारा ठीक था, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बट उसके बाद भी प्राइस 64 के नीचे ब्रेक नहीं करा। अब इस केस के अंदर 0.25 का चार्ट है, तो हम जरूर देखना चाहिए कि 0.15 पे ऐसा क्या हुआ था जो कि इसको फेवरेबल नहीं करा। तो ये ऑडियंस के लिए एक होमवर्क है, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाई यहाँ पे नहीं हुआ। सो अदरवाइज ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इतनी दूर वो करता नहीं है जल्दी, वो मल्टी टाइम फ्रेम को देखने पे ही करता है। Okay, this is now the challenge with this approach is there is no scanner as such. Going through multiple charts with naked eyes is best approach. But फिर भी what I have did is मैंने बूस्ट को यूज किया है। So there is that scanner in TradePoint name PNF multi time frame system. अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हमें डाउ थ्योरी देखना है तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे हमारे पास बियर ट्रैप्स हुए। जहां बियर ट्रैप्स हुए वहां पे फॉलो थ्रू खराब हुआ, एक स्विंग लो बन जाएगा, लो पोल बन जाएगा कहीं ना कहीं, और अगर उसका फॉलो थ्रू मिलता है तो वो हमारे फेवरेबल में डाउ थ्योरी के बनेगा। तो मैंने इसको यूज किया कैश के अंदर स्टॉक्स देखने के लिए कि 0.25% पे फास्ट को यूज करिए, फास्ट हमारा अपने आप एंकर कॉलम को ढूंढेगा। 0.1% पे 1% के ऊपर बियर ट्रैप ढूंढिए कि बियर ट्रैप या बियर ट्रैप फॉलो थ्रू बुलिश, दोनों में से कोई भी सेटअप मिल रहा है 1% पे विच आर गुड, और 2 और 3% पे सपोर्ट एंड ट्रेंड विच इज अ डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द बूस्ट। तो थोड़ा सा ट्वीक करिए बूस्ट को और वो आपके फेवर में बहुत कुछ निकाल के देगा। और यकीन मानिए मेरे पास इसाब, एसकेएफ इंडस्ट्रीज, पॉलीप्लेक्स, ये कैश के स्टॉक्स मैंने इसी के थ्रू ढूंढे हैं यूजिंग दिस पीएनएफ मल्टी टाइम फ्रेम सिस्टम। बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास इस स्कैनर के थ्रू। एंड I've been using this approach from last 18 months. Results are very favorable. Though I haven't documented anything कि मैंने कितने ट्रेड रहे हैं कितने, बट एक एक गट फील से मैं कह सकता हूँ 60 to 70% हिट रेशो आ जाता है। ओके, बहुत बढ़िया हिट रेशियो है, और उसमें भी आपका रिस्क रिवार्ड इज अमेजिंग। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहता है। कैश के लिए मैं स्ट्रेच करता हूँ, but most of the time maybe market is very good, I think, but stretching a bit on 0.25% is giving a benefit on, because आपका रिस्क रिवार्ड अमेजिंग इसलिए है कि आगे आप फॉलो थ्रू पे एंटर करते हैं, एंकर फॉलो थ्रू। हाँ जी, तो फॉलो थ्रू आपको रिस्क कम कर देता है, और डिस्पैरिटी वहां मेरे को हेल्प करता है कि हमें कहाँ पे कितनी हम दूर जो है। ग्रेट। So disparity is very important aspect. I think everyone should pay attention wherever they are trading, whichever plotting technique they are trading. ये लास्ट क्वेश्चन ये था, जस्ट माइंड में आया कि क्लस्टर ऑफ काउंट पे आप फुल बुक करते हैं? फुल बुक करता हूं मैं, हाँ। तो मैं वहां पे ये नहीं देखता, बट प्राइस का अगर इफ मेट द क्लस्टर ऑफ काउंट, ये अपसाइड या डाउन साइड, दोनों साइड का हम बात करें कि अगर प्राइस अगर मेट करता है, इसका मतलब कुछ शो करता है कि मोर बुलिशनेस। सॉरी मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या। अगर मान लो कि आपका क्लस्टर ऑफ काउंट है और प्राइस उसको मेट किया, मतलब प्राइस उस पे अचीव हो गया, तो वो शो करता है कि और बुलिशनेस है स्टॉक। देखिए अगर आप तो जस्ट ये था कि इसका कोई आपने कुछ मैनुअल बैक टेस्टिंग किया कुछ ट्रेड का, तब जाके आप जरूर आप इस रिजल्ट पे पहुंचे होंगे। हाँ, यही रहा है कि मोस्ट ऑफ, अगर देखिए अगर हमारा क्लस्टर काउंट, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं पहले, अगर डेरिवेटिव्स में क्लस्टर ऑफ काउंट को मीट करने के बाद प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर रहा, मान लीजिए 2-5 मिनट भी नहीं कर रहा, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको वेट करने का, कोई पॉइंट नहीं है। अगर उसमें स्ट्रेंथ है T20 के जैसे, तो T20 और सुपर ट्रेंड की तरह स्ट्रेंथ है और वो एकदम निकल रहा है, तब एक्सेप्शन केस में आप वेट करिए।
बट ओके जितना मेरा डेरिवेटिव के केस में स्ट्रिक्टली उसको वेट मत करो, दोबारा एंट्री मिलेगी, पक्का मिलेगी। बाय द टाइम आपका वर्टिकल काउंट मीट करेगा ना, आपका डिस्पैरिटी अपने आप खराब हो जाएगा। ओके डिस्पैरिटी इज लाइक अ मीन ऑफ द पेंडुलम। वो प्राइस जितना लेफ्ट जाएगा, जितना मर्जी जाए, उसको राइट आना ही पड़ेगा। वो राइट आएगा, वो हमारे को फेवरेबल सेटअप देगा, फिर दोबारा ट्रेड कर लेंगे। So there is no limit to number of trade you can get. So unnecessary, don't run behind the price. Have a contentment of the what you are getting and exit over there. Okay, great. It was such a nice session because आप जो जितना सिंप्लिसिटी से सब कुछ एक्सप्लेन किए और आपने जो अपने ट्रेड में जो आप यूज करते हो एंकर कॉलम, डिस्पैरिटी, एक्सोजो, सब कुछ ऑब्जेक्टिव प्लस उसके साथ आप क्लस्टर ऑफ काउंट जो आपको और माइलेज देता है। तो डिस्पैरिटी और क्लस्टर ऑफ काउंट ये दोनों का कॉम्बिनेशन सच अ लवली कॉम्बिनेशन है ये पॉइंटेड फिगर में क्लस्टर। Thank you. तो ओके, थैंक यू सो मच। और बिफोर दैट आपका ये ईमेल आईडी आई थिंक ये है sunil.dhawan@gmail.com। तो व्यूअर्स अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप मेल कर सकते हैं और डिटेल्स आपने शेयर कर दिया है। ट्विटर हैंडल है sunil.dhawan13। तो वहां भी आप जाके डीएम कर सकते हो या आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो जो भी आपसे इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। तो ओके, थैंक यू सो मच सुनील जी। Thank you, sir.